Okay, so you should be on your page 10 of the textbook, page number 10. We were learning about the First World War and Russian Revolution still to become coming in part 2. वो शायद UT 1 के बाद हो पाएगा. But First World War we learned that how the developed countries they started colonialism in the developing countries and how they expanded territories, how they became rich and rich. Okay, now the countries of which two continents were considered to be the developed countries? Which countries were known as developed countries? European countries and yes, American countries. European American countries, they were rich, they were powerful, and they wanted to expand their territories by ruling over other backward or poor countries. Now, which countries were considered to be poor or backward countries? Mufaddal, turn on the video. Yes, Asian and African countries. These were considered to be the less powerful countries. Now, in the previous lecture, we learned that how the European countries or which European countries established colonies on which Asian countries and on which African countries. Right? तो यूरोपियन कंट्रीज का हमने लर्न किया था एंड आई थिंक बोथ दिस टॉपिक्स वर कंप्लीटेड कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका दोनों खत्म हो गए थे यस और नो ऑफलाइन स्टूडेंट्स वेरी बैड Okay, go to your last paragraph of the page. While on one hand, the greedy European nations were trying to colonize various Asian and African territories. On the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. Political unification. Unify means to get united. Unification comes from the word unity. Okay? So, एक side European countries they were fighting for establishing their colonies and on the other side Italy and Germany बहुत आगे पहुंच चुके थे. Thus, the unified Germany plunged into the situation of industrialization, commercialization and colonialization. Now Germany अभी उसका history we are going to learn in next coming chapters. But एक time ऐसा था when Germany was a united country. Then because of some reasons it was divided into East Germany and West Germany. ठीक है अभी वो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे बट जस्ट टू गिव यू अ summary of the event that Germany was first united, then it was divided into East Germany and West Germany. But then West Germany started developing very fast because it was following democracy. एंड ईस्ट जर्मनी थे जो था वो अभी बहुत ही पीछे था बहुत ही बैकवर्ड था तो ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे द पीपल ऑफ ईस्ट जर्मनी दे ऑल्सो वांटेड टू डेवलप फास्ट एंड सो उनके बीच में जो वॉल थी वो ब्रेक हो गई एंड अगेन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी गॉट यूनाइटेड आज भी दोनों साथ ही है राइट तो फर्स्ट जर्मनी वाज वन देन इट वाज डिवाइडेड इनटू टू देन अगेन इट बिकेम वन समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू ओके पृथ्वी एंड मुफद्दल आई कैन नॉट सी यू तो नाउ जर्मनी हैज अगेन बिकम वेरी पावरफुल यूनाइटेड हो गया है पावरफुल हो गया है तो नाउ व्हाट जर्मनी डिड इट प्लंज्ड इनटू द कंपटीशन प्लंज मींस इट एंटर्ड जर्मनी भी कंपटीशन में आ गया अंडरलाइन द वर्ड प्लंज्ड एंड राइट द मीनिंग एंटर्ड वंश एंड क्रिश टर्न ऑन द वीडियोस plunged meaning
entered. So Germany also entered into the competition of industrialization. I think you know what is industrialization? Establishing more and more industries. Commercialization means trade and business. And colonization means establishing colonies in other backward countries. Underline the word commercialization and write the meaning trade or business. Trade or business. So Germany is also now entering the competition. And actually Germany ये नाम आप खास याद रखना आगे के 2 3 4 चैप्टर्स में जर्मनी 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 बहुत होने वाले हैं. You know why? Because directly or indirectly Germany was the reason for First World War as well as the Second World War. You all have heard the name of Hitler. है ना. तो हिटलर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो कि हम आगे लर्न करने वाले हैं. बट एक्चुअली जर्मनी वॉज अ वेरी पावरफुल फैक्टर विच रिजल्टेड इन टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो. तो जर्मनी अपने माइंड में रखना. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ईयर. ओके. आई स्टिल कैन नॉट सी पृथ्वी. Thus, these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries. Phenomena means situation. Underline the word phenomena and write the meaning. Situation. Krish. Thus, this quickly changing global situation had exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped. अब ऑब्वियसली आप पॉलिटिकल भी बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हो, सोशली भी बैकवर्ड हो, तो ऑटोमेटिकली योर डेवलपमेंट विल बी स्टॉप्ड. एंड विच कंट्रीज डेवलपमेंट स्टार्टेड बीइंग destroyed? What do you think? Asian and African countries, right? So the Asian and African countries started socially, politically, and economically started going more and more backward. And this led to the First World War because many of the countries were on one side who were establishing colonies, other countries who were backward, they formed another union, and this is how the First World War started. Okay? नील, ध्रुव, प्रेम, हृदय, दर्श, अनुज, सुशांत. बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार आपको इनविटेशन देती रहूं. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी कीप योर वीडियोस ऑन or else you can come directly to school tomorrow. No need to study like this. If I cannot see your faces, you are not allowed to sit in my class. Sorry. Yes, back to page number 11. Factors that caused First World War. Now, if you remember yesterday when we were in the class, we learned that there was not only one or two or three reasons that led to the World War. बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े रीजंस एक साथ कंबाइन होते हैं एंड देन कम्स अ लिमिट, राइट. और जब लिमिट आती है देन द वॉर ब्रेक्स. समझ में आ रहा है? सपोज वैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया ही था. वो कौन था? प्रेम और किसके बीच में हमने फाइटिंग करवाई थी? प्रेम और अनुज के बीच में, है ना. तो वी सॉ दैट सो मेनी टाइम्स अनुज ने सोचा कि चलो जाने देते, लेकिन प्रेम क्रॉसिंग द लिमिट्स नाउ. ओके. सो फाइनली दे बॉट हैड अ फाइटिंग, और जैसे ही दोनों ने फाइटिंग किया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास स्टार्टेड ज्वाइनिंग आइदर प्रेम और अनुज. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस जब कंबाइंड होते हैं देन फाइनली जब पानी सर से ऊपर चला जाता है फाइनली द वॉर ब्रेक्स आउट. So similarly for the First World War also, there were not only one or two small reasons. World War, it is a very big event. समझ में आ रहा है? मुफद्दल. Okay, so there were so many reasons which got together, which combined together, and finally the war broke out. What are these reasons that we are going to learn in this topic? Are you all on page 11?
Okay. Factors that caused the First World War. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. Modern world, आपको पता होगा कि history is divided into three parts: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे भयानक इवेंट कैन बी दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, बिकॉज इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि पूरे वर्ल्ड ने ऐसी खराब सिचुएशन देखी थी. Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. Underline this sentence. First World War 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty in 1871. Okay, now अभी आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा कौन सी कंट्री कौन से टीम में जा रही है वो देखने के लिए. ठीक है, वैसे क्लास में करते तो ज्यादा मजा आता, बट कोई बात नहीं. चलो, नाउ देयर वाज अ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड France. Now, at the end of the war, France was defeated. ओके, now आपको पता है कि कोई भी बैटल होती है, कोई भी वॉर होता है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, whenever the war ends, the loser country has to satisfy all the conditions of the winner country. ये तो आपको पता ही है. Yes or no? Suppose आप अपने घर में, सपोज आप यू आर फाइटिंग विथ योर ब्रदर और सिस्टर फॉर द टीवी रिमोट. दोनों को टीवी देखना है, दोनों को रिमोट कंट्रोल चाहिए. तो रिमोट कंट्रोल एक बाजू पड़ा है और आप दोनों कर रहे हैं फाइट. अब जो भी जीतेगा उसको क्या बेनिफिट होगा? रिमोट कंट्रोल मिलेगा. तो जो हार रहा है उसको अपना रिमोट सरेंडर करना पड़ेगा जीतने वाले को. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज इफ टू किंग्स आर फाइटिंग, किंग ए एंड किंग बी. तो उस फाइटिंग, ये इतना एरिया किंग ए का है और इतना एरिया किंग बी का है. देयर इज अ वॉर. नाउ इन दिस वॉर किंग ए इज डिफीटेड. देन व्हाट विल हैपन? किंग बी जो है जीतने वाला किंग, वो पूरे इतने एरिया का राजा बन जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये दोनों किंग्स के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है कि देयर वाज अ बैटल, द बैटल वाज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. किंग ए लॉस्ट द बैटल एंड ड्यू टू दिस किंग ए इज रेडी टू सरेंडर हिज एरिया टू किंग बी. वॉर इसीलिए होता है ना कि एक चीज के लिए दो लोग फाइट करते हैं, जीतने वाले को वो चीज मिल जाती है, राइट? तो सिमिलरली वापस आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे. देयर वाज अ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, एंड हु लॉस्ट द बैटल? फ्रांस. तो फ्रांस हार गया. अब जर्मनी में एक सिटी है फ्रैंकफर्ट. कौन सी सिटी है? फ्रैंकफर्ट. अब एज सुन एज द वॉर एंडेड, फ्रैंकफर्ट में दोनों देशों के लीडर्स मीट हुए. दे मेट and they signed a treaty. Treaty means an agreement. ये treaty word भी बहुत बार आएगा तो खास याद रखना. अभी मीनिंग लिख लो. treaty मीनिंग एग्रीमेंट. और ये खास याद रखना, बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा. Right? So France lost the battle, and as per the conditions, there was a meeting at the end of the battle in the city of Frankfurt. Now, fighting क्यों किया था? What was the reason? Let us go back to the textbook. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty in 1871, according to which, अब treaty में क्या था? According to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces, Lawrence and Elsass, to Germany. दो बड़े बड़े प्रोविंसेस फ्रांस के जो थे, विच वर वेरी रिच इन मिनरल्स, वहां पर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल थे.
राइट। तो एज पर द ट्रीटी, क्योंकि फ्रांस हार गया था, लॉरेंस एंड एप्सेस, दो cities had to be given to Germany, plus they had to pay a war fine also. I think you know what is a fine. कैश में भी पेमेंट करना था। समझ में आ रहा है? Okay. France had not been able to overcome this humiliation. Humiliation means insult. Underline the word humiliation and write the meaning insult. Right? Now, देखो, एक तो फ्रांस जो है नंबर वन, इट लॉस द बैटल. नंबर टू, देर वॉज लॉट ऑफ लॉस ऑफ आर्मी, वेपन, सोल्जर्स, एवरीथिंग. बहुत सारे लोग मर गए. नंबर थ्री, बहुत सारा फाइन पे करना पड़ा जर्मनी को. नंबर फोर, दो बड़े बड़े प्रोविंसेस जर्मनी उठा के लेके गए. सो डू यू थिंक फ्रांस विल फील इंसल्टेड? यस, ऑब्वियसली. तो अभी भूलेगा तो नहीं कि चलो जर्मनी को दे दिया, भूल जाओ, अब वापस से अपना इकोनॉमी स्टार्ट करो. ऐसा तो हो नहीं सकता. देयर विल बी दैट एनिमिटी इन द माइंड ऑफ फ्रांस, है ना. अब दोनों भाई बहन जब रिमोट के लिए फाइट कर रहे हो, आज तो भाई ने रिमोट ले लिया, लेकिन मैं याद रखूंगी, कल वो उठेगा उससे पहले मैं रूम में रिमोट लेके छुपा दूंगी, है ना. भूलने वाले तो है नहीं हम लोग. तो सेम थिंग, France could not forget this insult done by Germany. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. The end of a war sowed the seeds of a future war. एक वॉर खत्म हो गया, और दैट द सेम वॉर वाज द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वॉर. नाउ व्हिच वॉर एंडेड? द एंड ऑफ वन वॉर वाज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड वॉर. तो ये फर्स्ट वॉर कौन सा है, सेकेंड वॉर कौन सा है? Yes, the war between Germany and France. Though the first war between Germany and France ended, but it resulted to the न्यू वॉर. अब न्यू वॉर कौन सा है वो तो अभी हम देखने ही वाले हैं. ओके, सो द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द एंड ऑफ वन वॉर सोड द सीड्स ऑफ द फ्यूचर वॉर. समझ में आ रहा है? इसके बाद वन आफ्टर वन सो मेनी इवेंट्स अकर्ड, एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. द फर्स्ट इज द इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू मनी और फाइनेंस. हमें पता है कि इकोनॉमिकली बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी दे हैव बिकम वीक. Okay, so let's see what are the economic factors. England had established colonies, its vast empire in Asia and Africa. वो तो हमें पता ही है. इंग्लैंड ने बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलोनीज बनाई थी. So England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. India was one of them. It exploited the colonies economically and became rich. Due to industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. Procure means to get. Underline the word procure and write the meaning get. Okay, so now there are Asian countries, देर आर अफ्रीकन कंट्रीज, और सभी कंट्रीज में इंग्लैंड इज रूलिंग. अब इंग्लैंड था फर्स्ट कंट्री. अब उसी कंपटीशन में एंटर हो रहा है कौन? कौन एंटर हो रहा है उसी कंपटीशन में? Germany. Okay, so England had already established its colonies in Asian and African countries. It was getting richer and richer because of all the raw materials. एशिया अफ्रीका के सभी रॉ मटेरियल्स उठा उठा के इंग्लैंड लेकर जाते थे, और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश प्रोडक्ट्स बाकी के कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट. अब इसी प्रॉफिट को देखकर, इसी स्ट्रेटेजी को देखकर, नाउ जर्मनी इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. देखो वापस आ गया ना जर्मनी का नाम.
याद रखना जर्मनी को. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. यस. जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. अब जर्मनी ने क्या किया, आपको पता होगा कि जब भी कंपटीशन होता है दो प्रोड्यूसर्स के बीच में, तो कस्टमर इज ऑलवेज बेनिफिटेड, है ना. सपोज मेरे पास एक कंपनी है जिसमें मैं बिस्किट्स बना रही हूँ. देर इज वन कस्टमर ए, सॉरी, देर इज वन प्रोड्यूसर ए एंड बी. ओके. अब इतने सालों से ए जो है वो बिस्किट्स बनाता था और 15 रुपीज पे बेचता था, एंड ऑल द पीपल यूज टू परचेज इट. अभी एंटर हो रहा है बी मार्केट में. बी मतलब हमारा जर्मनी, राइट. नाउ बिकॉज ए वॉज doing business is so many years, it was very difficult for B to stand in the market. तो B ने क्या किया, वही बिस्किट्स, वही क्वालिटी, वही चीजें, he started selling at 13 rupees. तो कस्टमर क्या करेगा? If you were the customer, what would you do? Yes, हम तो इसी तरफ जाएंगे. तो ये जो पूरा सिचुएशन है वो था इंग्लैंड, जो कि इतने सालों से दादागिरी करता था. अब मार्केट में कौन एंटर हो रहा है? जर्मनी. एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी अप्लाइड बाय जर्मनी? व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी अप्लाइड बाय जर्मनी? Yes, they supply goods at the cheaper rate. Okay, let's go to the textbook. Germany started supplying cheaper goods in comparison to England and France. The Afro-Asian markets. Afro-Asian meaning अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, जहां पर वो चीजें बेचते थे. द एफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर thus broken up by Germany. Dominated means controlled. Underline the word dominated and write the meaning. Controlled. तो since so many years जहां पर इंग्लैंड का डोमिनेशन था, जहां पर फ्रांस का डोमिनेशन था, एवरीथिंग वॉज स्पॉइल्ड बाय जर्मनी. ठीक है, जर्मनी ने आके सब बिगाड़ दिया. कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड. तो देखो ग्रुप बनना शुरू हो गया. इतने सालों से इंग्लैंड था, अब उसके सामने कौन आ गया? जर्मनी. सो नाउ अब इंग्लैंड वाज अर्निंग प्रॉफिट्स इन सो मेनी इयर्स, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी गुड, वेरी वेल, बिकॉज ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन मार्केट्स. अब वो इकोनॉमिक कंडीशन जर्मनी ने ब्रेक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इंग्लैंड एंड जर्मनी बिकेम एनिमीज. ओके, दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर द वॉर. अभी तो ये एक ही रीजन है. एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक? एनीबॉडी? Okay, then comes militarism. What do you mean by the word military? आर्मी. ठीक है, अब सबको पता है that the condition is very tense in all the countries. मुझे इंग्लैंड को पता है कि कभी भी जर्मनी मेरे पर अटैक कर सकता है, जर्मनी को पता है कि इंग्लैंड कभी भी हमारे पर अटैक कर सकता है. तो slowly they started making their military stronger and stronger, and this condition is known as militarism. सभी जगह मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने लगे. नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल. आई विल गिव यू वन इजी एग्जांपल कि युवराज एंड हर्षित आर हैविंग अ फाइट. ठीक है, इंग्लैंड और जर्मनी के बदले अभी हम युवराज और हर्षित के बीच में फाइटिंग करवाते हैं. ओके, अब दोनों के बीच में कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है. सामने से निकलते तो मुंह बिगाड़ते रहते हैं. कभी युवराज का ध्यान नहीं है तो हर्षित उसका बैग फेंक देता है, कभी हर्षित का ध्यान नहीं तो युवराज उसकी साइकिल में पंक्चर कर देता है. तो ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती है. ठीक है, बट देन व्हाट हैपेंड, युवराज ने धीरे धीरे क्या किया कि दूसरी कंट्रीज को ऑर्डर देकर एक्सप्लोजिव्स बनाने लगा, बॉम्ब बनाने लगा, गन का ऑर्डर दे दिया, राइफल बनाने लगा, और सोल्जर्स को एकदम इंटेंस ट्रेनिंग देने लगा. नाउ दिस हर्षित केम टू नो,
अब हर्षित को लगा कि ये सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा है, वेपन्स मंगवा रहा है, जरूर जिस जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी मेरे पर अटैक करेगा। तो व्हाट विल हर्षित थ्रू? हर्षित तुम क्या करोगे अभी? Yes, Harshit will do the same thing. He will also start training his army. He will also start giving orders for the weapons. He will also be very prepared कि अगर युवराज ने एक बार भी इनिशिएट किया तो आई एम रेडी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लैंड और जर्मनी दो ही नहीं है, युवराज और हर्षित दो ही नहीं है, यहाँ पर फ्रांस भी है, इटली भी है, जापान भी है, पोर्टुगल भी है, ऑल द कंट्रीज आर। अब वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट युवराज एंड हर्षित, मैदान में काव्या भी है, स्नेहा भी है, पृथ्वी भी है, अनुज भी है, नील भी है। अब सबको पता चलने लगा कि सब आर्मीज को ट्रेन कर रहे हैं, सब वेपन्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम भी रेडी रहते हैं, कभी भी हमें भी जरूरत पड़ सके। समझ में आ रही बात ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है ना? Right? So similarly, now what happened that all the countries have started militarism. Means they have started training their soldiers, they have started deploying the weapons and everything. And due to this, बाकी के countries के mind में डर लगा रहता है कि हम पर अटैक करेगा तो, हम पर कटेगा तो, so all are afraid. Okay, let's do the reading part. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into. For expansion, अभी expansion के लिए military was very much necessary. England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power. All the countries started expanding military. While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. जैसे ही कोई भी यूथ स्टडीज कंप्लीट करता है या स्टडीज के साथ कॉलेज के थर्ड ईयर में है तो मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी। जैसे आपको पीटी का पीरियड होता था, है ना, एरोबिक्स, एरोबिक्स में क्या होता है, जनरली एक्सरसाइज करते हैं आप लोग। तो सिमिलरली मिलिट्री ट्रेनिंग वाज मेड कंपलसरी, स्पेशली इन जापान, इटली एंड जर्मनी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना? Production of weapons was increased under the pretext of self defense. Pretext means under the view, सब लोग self defense के नाम पे ज्यादा से ज्यादा weapons produce करने लगे। Okay? Thus militarism got an impetus. Impetus means speed. Underline the word impetus and write the meaning speed. Thus, militarism got speed and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. Economic competition तो था ही, उसके ऊपर military competition आ गया, so now it was a very serious condition. Now any time the war can break out. People should be ready for this situation. Do you understand the second factor, all of you? Yes. What was the first factor? Economic factors. This way competition but maybe. And second is militarism, where countries have started producing weapons to such a large extent that now the war can break out anytime. Okay. The third point is groupism or secret treaties. ये मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था क्लास में, अगर आपको याद है तो, कैसे ग्रुप्स बनने लगे थे, याद आ रहा है? अनुज अनुज और प्रेम ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, याद है ना कि नहीं? Yes. So now the countries have started making groups, they have started making secret agreements कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं आपसे मदद लूंगी, आपको मेरे साथ रहना है। दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, ऐसे सबने एक दूसरे के साथ कर लिया था। ओके, सो groupism and secret treaties played a major role in the First World War. Now, what do you mean by treaty?
agreement. Yes, secret agreement was already done. So, groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The world was divided into two groups before the First World War. On one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia, and Japan. एक साइड इंग्लैंड और उसकी टीम, दूसरी साइड जर्मनी और उसकी टीम. वेरी गुड. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups. कौन-कौन सी feelings थी? Jealousy. I think you all know what is jealousy. Yes. Enmity, दुश्मनी. Mistrust, nobody trusted anybody. इसने मेरे साथ ट्रीटी तो साइन किया है, लेकिन वहां पर एंड टाइम पे चीटिंग करेगा तो वहां चला जाएगा. तो फियर एंड हेट्रेड, ऑल वर अफ्रेड, ऑल हेटेड ईच अदर. किसी पे ट्रस्ट करने लायक है ही नहीं. Okay, so all these were the feelings among all the countries of the world, which was an important factor of the First World War. Okay, so this was the third reason जो कि वर्ल्ड वॉर की तरफ हमें लेकर जा रहा है. Any doubts in this point? Anybody? Okay, now comes the fourth factor, that is a feeling of fierce nationalism. What do you mean by nationalism? Yes, a feeling of love for your nation. When you love your nation, when you are ready to sacrifice your life for the nation, it is known as nationalism. यहाँ पर क्या बोला है? Fierce nationalism. A very strong, a very powerful feeling of nationalism. कुछ भी हो जाए, अपनी कंट्री के लिए मर भी जाएंगे, मार भी देंगे, है ना. कहीं पर बॉम्ब फोड़ना है तो हम जाकर फोड़ कर आएंगे, भले हम भी मर जाए. तो in every countries there were so many people who had a feeling of love for the nation. मेरा नेशन बेस्ट, बाकी के नेशन सब बेकार. अब सभी लोग ऐसा सोचेंगे, मतलब क्या हुआ कि दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर कंट्री. And this doing of anything for the country obviously results into a war. अनुज भी अपनी कंट्री के लिए मार सकता है, कृषा भी कर सकती है, हर्षित भी कर सकता है, पृथ्वी भी कर सकती है. अब सबको अपनी अपनी कंट्रीज अच्छी लगती है, सबको दूसरे की कंट्री बुरी लगती है, तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इनटू अ वॉर. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? राइट. नाउ दिस टॉपिक रीडिंग we will do tomorrow. Right, we have shortage of time, we won't be able to complete the topic. So fierce nationalism एक्सप्लेनेशन ऐसे आपको पता तो चल गया है, रीडिंग हम कल करेंगे. एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनीबॉडी? नो? शैल वी एंड द लेक्चर? ओके, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.